Hello, good morning, dear students. So, today we will discuss the chemical properties of alkyl halides or haloalkanes. तो पहले हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड. तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड वी नो दैट द कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट ऑफ द हेलोजन. तो हेलोजन एक्स जो होता है हेलोजन, फॉर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है. ठीक है. तो दिस हेलोजन एटम मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड दिस वी नो दैट हेलोजन atoms in the periodic table we know that the halogens are most electronegative elements. So when this most electronegative element is attached to this carbon which is having less electronegative difference, as a result of which you will see here that this bond pair of electron will get shifted towards more towards this electronegative element X. That is, it means that this halogen atom will get slightly negative charge and this will get slightly positive charge. Due to which, just as a result of the this charge separation of positive and negative charge separation, so this is having the interesting chemical properties, and it is polar in nature. So this is a polar in nature because of the creation of positive centers and negative centers, that is dipole. So it also possesses dipole moment. Clear? So dipole moment, and the polarity and dipole moment also depends upon the nature of the halogen atom. For example, this halogen atom may be fluorine here, it may be chlorine, it may be bromine or iodine. Accordingly, we will see here that polarity or dipole moment will be it depends upon the nature of this halogen atom. Clear? So similarly, so here we will see here that actually alkyl halides or carbon in alkyl halides कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर इन नेचर. ठीक है. तो पोलरिटी किस पे डिपेंड करेंगी? नेचर ऑफ द हेलोजन एटम अटैच टू दिस कार्बन एटम, एंड दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द हेलोजन एटम, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कार्बन और हेलोजन के एटम. ठीक है. अगर हम देंगे ऑर्डर ऑफ द पोलरिटी या बॉन्ड्स, ये जो है बॉन्ड लेंथ नहीं बता सकते, ऑर्डर ऑफ देयर पोलरिटी अगर हम देंगे या डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर हम देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो कार्बन फ्लोरीन जो होता है ना, बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन, दिस इज हैविंग हाई polar, this is most polar, and it is having high polarity and it is having also high dipole moment then as compared to carbon chlorine, that carbon bromine, that carbon iodine bond. Clear? So this as this in this sequence, in this order, the polarity of the molecule depends. So it depends upon the electronegativity of the halogen atom which is attached to this carbon atom. More the electronegativity of the halogen atom, more is the polarity, more is the dipole moment. Clear? Similarly, so here carbon is attached to this halogen atom. So in this in case of haloalkanes, that is carbon, for example we have taken the example of methyl chloride. Clear? Methyl chloride में क्या होता है? We will see here. In methyl chloride, carbon is attached with these three hydrogen atoms. Clear? And is also attached with this chlorine atom, but this chlorine atom is having two unshared pair of electrons. There is one bonding electron and two non bonding pair of electrons. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, कार्बन जो है ना, कार्बन इसमें होता है sp3 hybridized. So it is sp3 hybridized. So here it is sp3 hybridized. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो होता है, it forms 4 sp3 hybrid orbitals which result in the formation of 4 bonds and it is having a tetrahedral structure. ठीक है. तो यहाँ पर क्योंकि अल्केन है, अल्केन में हमें पता है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए गए विथ हाइड्रोजन के साथ, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एमंग 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे यानी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड
बनाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली व्हेन वी सी द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ दिस मिथाइल क्लोराइड वी विल सी हियर दैट this sp3 hybrid orbital one overlaps with this s orbital of the hydrogen. This overlaps with the s orbital of this hydrogen. Similarly, this overlaps with the s orbital of the hydrogen. So hydrogen is having atomic number 1s. So it is mean is the s orbital of the hydrogen 1s1. Okay. इसी तरह से जो दूसरा ऑर्बिटल जो होता है वो इसको क्लोरीन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ मिल जाएगा एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स. तो these 4 bonds are at they form they are at angle of 109.28 degree, that is minus 109 degree 28 second. That means that it is having the tetrahedral angle. So this they form the tetrahedral structure because as carbon is sp3 hybridized. तो चूंकि हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है. तो these are the lone pair of electrons which are present at this chlorine bond, and it is because of this also there occur also the carbon lone pair bond pair repulsion. Clear. So it will also result in the change in shape of the molecule. So here it is the molecule, the carbon is sp3 hybridized having the tetrahedral structure, ठीक है, in case of alkyl halides or haloalkanes. Clear. Similarly, the strength of carbon halogen bond is expressed in terms of bond dissociation enthalpy. अब ये जो है कार्बन और फ्लोरीन फॉर एग्जाम्पल मिथाइल क्लोराइड हमने लिया है हमने यहाँ पर एग्जाम्पल. इसमें क्या होता है, क्योंकि जितना फ्लोरीन जितना ये फॉर एग्जाम्पल हेलोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा इसमें होती है. मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है, शॉर्टर इज द बॉन्ड, ठीक है. अगर हम देखेंगे ना को ये जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, क्योंकि हमने वी हैव डिस्कस्ड दिस दैट कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है, इस फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट गेट्स स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड इट गेट्स स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स दिस फ्लोरीन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसका जो बॉन्ड लेंथ जो होती है ना कार्बन फ्लोरीन की, और इसका साइज भी छोटा है, जिसकी वजह से क्या होता है इसकी बॉन्ड लेंथ जो है 139 पिकोमीटर, यानी लेस देन दैट ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड विच इज़ लेस देन दैट ऑफ. लेकिन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड जो होता है ना ये जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ जो होती है ना, इट इज़ लेस देन एज कम्पेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड विच इज़ लेस देन एज कम्पेयर टू कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड विच इज़ लेस देन एज कम्पेयर टू कार्बन आयोडीन बॉन्ड, ठीक है. तो ये है ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ. तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो है इट विल बी इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि आयोडीन का जो है साइज़ भी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और आयोडीन का, ये जो इट इज बॉन्ड लेंथ विल बी मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है. क्लियर. तो इस ऑन द बेस ऑफ दिस जब इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है बॉन्ड लेंथ जो होती है ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है. क्लियर. अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लग जाएगी. क्लियर. अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है या कम है तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा लग जाएगी. तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे कार्बन फ्लोरीन का जो है बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कम्पेयर टू डेट ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कार्बन फ्लोरीन की ज़्यादा होगी. एज ए रिजल्ट ऑफ कार्बन क्लोरीन जो है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी इन टू ब्रेक दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन क्लोरीन इट इज़ 351.12 किलो जूल पर मोल. क्लियर. इसी तरह से आप इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 292 किलो जूल पर मोल. क्लियर. इसी तरह से आप देखो इसमें है 234.08 किलो जूल पर मोल. तो सबसे कम जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो है
मिथाइल आयोडाइड में, ठीक है। इस एज ए रिजल्ट ऑफ दिस बॉन्ड गेट्स इजीली ब्रोकन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। क्लियर। सो केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने अभी नेचर ऑफ द कार्बन हैलोजन बॉन्ड डिस्कस किया है। अब चूँकि जब हम नेचर ऑफ द कार्बन हैलोजन बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा जो कार्बन जो और हैलोजन का बॉन्ड जो होता है इट इज़ पोलर इन नेचर, ठीक है। अब ये पोलर होने की वजह से क्या होता है, इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटर्स पैदा हो जाते हैं और पॉजिटिव सेंटर्स पैदा होते हैं। क्लियर। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटर पैदा होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि पोलरिटी की वजह से क्या होता है, इस पर अगर हम इन अल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स की बात करेंगे तो इस पर रेडिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, इस पर न्यूक्लियोफिलिक जो होता है न्यूक्लियस लविंग, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्लियर। हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज पे होती है, ये भी नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अभी न्यूक्लियोफाइल विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर। तो न्यूक्लियोफाइल बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच ये इस दिस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा, ठीक है। तो दिस न्यूक्लियोफाइल बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। तो एज ए रिजल्ट अगर हम देखेंगे ना ये अल्काइल हैलाइड्स में मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करता है, कार्बन पर, तो इस पर अटैक करना ईजिली होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दिस हैलोजन। क्योंकि अगर हैलोजन करेंगे, हैलोजन ये जो होता है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से इस पर अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्लियर। सो तो सिमिलर। तो इसके बाद क्या होगा, तो ये जो है अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है दे अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि कार्बन जो होता है इट इज सब्सेप्टिबल टू द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जिसकी वजह से इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो ज़रा देखेंगे हम सब्स्टिट्यूशन बाय अब न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है, या नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्लियर। तो न्यूक्लियोफाइल्स में भी न्यूट्रल और नेगेटिव। तो हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल हियर हमने क्या किया है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है डेट इज OH नेगेटिव। क्लियर। तो OH नेगेटिव कहाँ से आएगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये किस पर अटैक करेगा, ये कार्बन एटम पर अटैक करेगा विच इज़ पोलर इन नेचर कैरिंग सम पॉजिटिव चार्ज। तो जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पर यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेगा, रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो जाएगी और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है, तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर अल्कोहल्स बन जाते हैं। क्लियर। तो सिमिलरली वी हैव टेकन हियर द एग्जांपल। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स उसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, बॉइलिंग करेंगे थोड़ा इसमें, तो यहाँ पर जो अल्कोहल्स बनते हैं ROH प्लस पोटेशियम हैलाइड बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया है R का वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हो आप, CH3 C2H5 C3H7 कुछ भी आप दे सकते हो। R का जैसे अल्काइल ग्रुप हमने अल्काइल ग्रुप लिया है C2H5 एंड हेलोजन जो लिया है आपने ब्रोमीन लिया है, ठीक है। जो इज कॉल्ड एज इथाइल ब्रोमाइड, जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ थोड़ा बॉयल करेंगे तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बनता है एंड पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये OH जो है यहाँ पर कार्बन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हमें आगे डिस्कस करनी है इसका मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंट SN1 पाथ्स होते हैं, SN2 रिएक्शन होते हैं, तो वो हम डिस्कस आगे करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखो दिस इज इथाइल आयोडाइड जो है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर, दिस इज मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसको बॉयल करेंगे तो यहाँ पर जो बनता है इथेनॉल बनता है, सिल्वर आयोडाइड बनता है। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
हो जाता है। क्लियर। तो OH part of the potassium hydroxide will attack at this carbon atom. ठीक है। Similarly, substitution by alkoxy group, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है। तो कैसे ईथर्स बन जाते हैं और कैसे अल्कोक्सी ग्रुप जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। तो रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ईथर, तो जब हम ईथर्स की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये सीधी सी बात है, ये कौन सा रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो है इसमें इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड हमने लेना है, अल्कोक्सी ग्रुप, कोई भी अल्कोक्सी ग्रुप कैसे लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने रिएजेंट लिया है सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है। तो अल्कोक्सी ग्रुप कौन होगा यहाँ पर, अगर हम देखेंगे, सॉरी, ये जो है ना, ये RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव। और यहाँ पर RO नेगेटिव इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन हो जाएगी, क्योंकि इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, it will attack at this electron deficient center, it forms the dialkyl ether, that is ethers are formed। ठीक है। और सोडियम किसके साथ मिलेगा, दिस हेलोजन के साथ। क्लियर। तो अगर हम एग्जांपल देखेंगे, इथाइल ब्रोमाइड हमने लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पार्ट C2H5O नेगेटिव किसके साथ मिल जाएगा, ये इस C2H5 के साथ मिलेगा, क्योंकि ये कार्बन पर अटैक करता है। ठीक है ना। और ये ब्रोमीन किसके साथ मिलेगा, सोडियम के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा इथॉक्सी ईथेन, C2H5O C2H5, दिस कॉल्ड एज इथॉक्सी ईथेन। क्लियर। तो सोडियम ब्रोमाइड बाय प्रोडक्ट बनता है। क्लियर। सिमिलरली सबस्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप यानी कि RCO नेगेटिव प्लस सिल्वर, ये जो है ये बन जाएगा RCO नेगेटिव एंड सिल्वर पॉजिटिव। क्लियर। ये RCO नेगेटिव जो है दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर सॉल्ट। ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाते हैं, ईस्टर्स बन जाते हैं, इसको हम ईस्टरिफिकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन है, ईस्टर्स बन जाते हैं, तो इसको हम ईस्टरिफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है। ठीक है। सिल्वर सॉल्ट लिया हमने, तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा, सॉरी कार्बोक्सिलेट ग्रुप निकल जाएगा, और यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O इस R के साथ मिलेगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, तो ये एक्चुअली सॉरी यहाँ पर OR है। ठीक है। दिस इज RC डबल बॉन्ड OR। क्लियर। तो ये यहाँ पर ईस्टर्स बन जाएंगे, यानी RC डबल बॉन्ड OR और X इस सिल्वर के साथ मिल जाएगा। ठीक है। तो इट बिकम सिल्वर हैलाइड। क्लियर। तो हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, दिस इज ब्रोमो ईथेन। ठीक है, या इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है। तो इथाइल ब्रोमाइड को हम किसके साथ लेंगे, सिल्वर एसिटेट के साथ। ठीक है। तो सिल्वर एसिटेट के साथ, क्योंकि ये जो है ये बन जाएगा एसिटेट आयन, CH3C डबल बॉन्ड हो, कैसे गए CH3CO नेगेटिव, इट एक्ट्स एज हियर, इट विल एक्ट्स एज हियर न्यूक्लियोफाइल। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बन पर, तो ये C2H5 इसके साथ मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ बॉन्ड बनेगा, और ब्रोमीन किसके साथ निकल जाएगा, सिल्वर के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है इथाइल इथोनेट बन जाता है। क्लियर। हाँ, इसके बाद है सबस्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। अब यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, साइनाइड। ठीक है। ये जो है साइनो ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, यहाँ पर साइनाइड्स बन जाते हैं। तो RX विथ पोटेशियम साइनाइड, क्योंकि हमें पता है KCN जो है इट गिव्स K पॉजिटिव प्लस साइनाइड नेगेटिव, तो ये साइनाइड बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच विल अटैक एट दिस कार्बन एटम ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप। क्लियर। यहाँ से क्या बन जाएंगे, हमें अल्काइन नाइट्राइल, पहले इनको नाइट्राइल्स भी कहते हैं। ठीक है। और CN जो है, जब कार्बन जो है ये जो है C ट्रिपल बॉन्ड N जो होता है ना, एक्चुअली इट इज़ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना। जब ये कार्बन के साथ जब कार्बन अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, तब हम इसको कहते हैं नाइट्राइल्स। ठीक है। या हम इसको कहते हैं साइनाइड्स। ठीक है। लेकिन जब नाइट्रोजन एज ए डोनर बन जाएगा, ठीक है,
तो जब नाइट्रोजन और के साथ बॉन्ड बनाता है इनको कहते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है, या आइसोनाइट्राइल्स भी कह सकते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो दिस पोटेशियम साइनाइड यहाँ पर बन जाएगा एल्केन नाइट्राइल, क्योंकि साइनाइड इस एल्केन के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो अभी भी हमने देखा। तो ये बन जाएगा एल्केन नाइट्राइल प्लस कि इस एक्स के साथ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम हैलाइड। एग्जाम्पल आप ले लो, क्लियर। तो साइनाइड इन द फॉर्म ऑफ Cn नेगेटिव, इस मिथाइल के साथ कार्बन इस मिथाइल कार्बन पर अटैक करेगा, रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ इथेन नाइट्राइल या पोटेशियम ब्रोमाइड भी निकलता है, ठीक है, इस ब्रोमीन के साथ, ठीक है। इसी तरह से आप देखो इथाइल क्लोराइड पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो यहाँ KCN निकलेगा और साइनाइड जो है बीइंग नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स दिस C2H5 यानी कार्बन ऑफ द दिस इथाइल ग्रुप इज फॉर्म द प्रोपेन नाइट्राइल C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस कॉल्ड द प्रोपेन नाइट्राइल प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद आप देखो सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप, ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अभी यहाँ पर कौन सा ये हम अभी बात कर रहे थे नाइट्रोजन कार्बन की बात। अब जब नाइट्रोजन जब डोनर बन जाता है, तो अपने लिगेंड्स पढ़े होंगे एबिडेंट लिगेंड्स, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है डोनर बन जाता है और ये आर्क के साथ बॉन्ड बनाता है, अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, तब इसको कहेंगे आइसोसाइनो, ठीक है। आइसोसाइनो ग्रुप से आइसोसाइनाइड्स भी कहते हैं, अल्काइल आइसोसाइनाइड्स, ठीक है, बन जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बन जाते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड्स क्योंकि आइसोसाइनो ग्रुप जो है इट एक्ट्स नाउ हियर एज न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो कैसे होगा ये RX, ठीक है, प्लस सिल्वर साइनाइड, सिल्वर जो ब्रेक होगा कैसे AgCN गिव्स, एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा इट गिव्स Ag पॉजिटिव CN नेगेटिव, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे Ag पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव, ठीक है। तो Ag ये A भी हमें पता है यहाँ पोलरिटी है, दिस पॉजिटिव कार्बन फॉर एग्जाम्पल हमने लिया C2H5, तो ये पॉजिटिव होगा, ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ पोलरिटी, ये जब Ag बन जाएगा AgX, और चूंकि ये यहाँ पर अटैक करने वाला है न्यूक्लियोफाइल, जिसकी वजह से क्या होता है ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है हियर और ये इस साइनाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर कौन सा एटम डोनर है, यहाँ पर नाइट्रोजन, इसलिए इसको कहते हैं आइसोसाइनो ग्रुप, या आइसो जब प्रोडक्ट बन जाता है आइसोसाइनाइड्स, ठीक है। तो दिस कॉल्ड अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो दिस एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं RN ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज तब आएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने बॉन्ड बना देगा 3, लेकिन जब ये चौथा बॉन्ड बनाएगा तो इस पर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। या हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि लोन पे जब एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देता है ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज ये किसी वैकेंट ऑर्बिटल में दूसरा एटम जो होता है वैकेंट, इसका कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये जो नाइट्रोजन जब दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तब वो उसी बॉन्ड को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरह C2H5Br सिल्वर साइनाइड अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ हीट करेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड निकल जाता है। मैकेनिज्म आपको पता है। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर जो व्हाट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल जो होगा नाइट्रो ग्रुप है। तो इन द रिएजेंट, यहाँ पर रिएजेंट कौन होगा यहाँ पर, तो रिएजेंट इज सिल्वर नाइट्राइड AgNO2, क्लियर। तो ये AgNO2 जो होता है, सॉरी ये AgNO2, तो ये बन जाएगा Ag पॉजिटिव प्लस NO2 नेगेटिव, क्लियर। जब NO2 नेगेटिव बन जाएगा तो आपको पता होगा ये दिस इलेक्ट्रॉन रिच, दिस विल अटैक एट दिस कार्बन विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, आप देखो यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड बन जाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज नाइट्रो एल्केन्स, ठीक है।
प्लस AgX निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर हैलाइड। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, खुद एग्जाम्पल आप दे सकते हो। आप फॉर एग्जाम्पल C2H यहाँ पर R के बदले आप CH3 भी दे सकते हो, या C2 फॉर एग्जाम्पल हमने CH3 देना है, CH3 दिया है X के साथ AgON डबल बॉन्ड O। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी, AgO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब देखो क्या होगा, ये AgX के साथ निकल जाएगा, और ये CH3 जो है, क्योंकि हमें पता है ये जो है NO2 एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये जो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इट द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस CH3। और यहाँ पर कौन, क्योंकि नाइट्रोजन पर नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये इस पे ऐसा होगा एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो दिस कॉल्ड एज मिथाइल नाइट्रोमीथेन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डोनर जो होगा नाइट्रोजन होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये नाइट्रो एल्केन्स बन जाएंगे। यहाँ पर हमने देखा नाइट्रोमीथेन कैसे बन गया है। क्लियर। इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप में क्या होता है, जब हम अमाइनो ग्रुप के साथ जब अमाइनो ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है NH2, इट इज एक्चुअली द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पर इसमें नेगेटिव चार्ज वार्ज नहीं है, इस पर सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स जो है दे आर बेसिस, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिस बट ऑल बेस आर नॉट न्यूक्लियोफाइल्स। तो NH2 इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस है, हम इसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, क्योंकि इस पर नंबर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो NH2 जो है अमाइनो ग्रुप जो होता है एज ए एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ अमाइन्स बन जाए, जब अमाइन्स यहाँ से बन जाते हैं। तो इस रिएक्शन को कहते हैं, जब आपको अमाइन फॉर्मेशन आप बना रहे हो ना, तो रिएक्शन को याद रखना, उसको कहते हैं हॉफमैनस अमोनोलिसिस। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज अ हॉफमैनस अमोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, तो हियर वी विल सी द एग्जांपल। हम क्या लेंगे, इथाइल ब्रोमाइड लेंगे विथ अमोनिया के साथ। ठीक है, NH3। ठीक, क्लियर। और क्योंकि हम यहाँ पर एक्चुअली पता है क्या होता है, पहले यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पर है यहाँ पर, वो अटैक करेगा इस कॉर्नर पर, उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर कार्बो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कार्बोकैटायंस, इट डिपेंड्स अपॉन द कौन सा, अब ये कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी ये आपका हैलाइड है या अल्काइल हैलाइड है या नहीं, तो इसी पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स अकॉर्डिंगली वी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम आगे भी देखेंगे इसका मैकेनिज्म भी कैसा होता है। ठीक है, तो इस वक्त आप याद रखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर है, अटैक करेगा इस कॉर्नर पर, तो ये बन जाएगा C2H5NH2, इसको कहते हैं इथेन अमाइन। ठीक है, और फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से, लेकिन अब यहाँ पर देखो, ये जो बन जाता है इथेन अमाइन जो है, इज अ प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब देखो सेकेंडरी अमाइन भी बन जाएगा। क्यों, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर या अगर हम आप फॉर एग्जाम्पल C2H5 यानी एक अल्काइल के बदले दो अल्काइल ग्रुप्स लिखो, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे, और कार्बन यहाँ पर है, दूसरा और ग्रुप है, और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, और ये ब्रोमीन है। ठीक है, और जब इसको इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पर NH2 और हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट निकले HBr, और यहाँ पर निकलेगा टर्शरी अमाइन्स बन जाएंगे, सॉरी सेकेंडरी अमाइन्स बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब इस H के बदले आप R लिख रहे हो, अगर फॉर हमने अपने यहाँ पर R लिया, यहाँ पर भी R लिया, तो यहाँ पर जो बन जाएंगे टर्शरी अमाइन्स बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, ये जो फॉर एग्जांपल आपने लिया ना, ये जो प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन अमोनिया के साथ बन जाते हैं। तो when we treat this ethyl bromide with this ammonia इन अल्कोहलिक सोल्यूशन, इसको हीट करेंगे, तो प्राइमरी अमाइन भी बना सकते हो, सेकेंडरी अमाइन भी बना सकते हो, लेकिन टर्शरी अमाइन आप नहीं बना सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन, अगर आप देखो टर्शरी अमाइंस में, अमाइंस को बनाने के लिए एक हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए, जिसको हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना, जब इस
फॉर एग्जाम्पल इस टेरिशरी अल्काइल में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जिसको आप रिप्लेस करोगे, तो जिसकी वजह से क्या होता है, टेरिशरी अमाइंस नहीं बन जाते हैं विद दिस अमाइनस और विथ अल्कोहलिक सोल्यूशन। ठीक है, तो दिस इज़ अ लिमिटेशन क्या है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर टेरिशरी अमाइन नहीं बन जाता। लेकिन अगर हम इसको तो यानी कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल टेरिशरी अमाइन जो होता है ना, ठीक है, इसको विथ इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बनता है टेट्रा इथाइल अमाइन ब्रोमाइड, यानी क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट बनता है। दिस क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट बिकॉज अब जहाँ एक्चुअली क्या हो जाता है, यहाँ पर C2H5 जो है, अब नाइट्रोजन जो होता है जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो है इट एक्ट्स एज नो एज ए what is this called as this acts as a nucleophile। ठीक है, because in lone pair of electron no this will form the bond, यानी कि नाइट्रोजन का ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल होता है बॉन्ड बनाने में। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होता है तो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी इसको के, तो उसको वहाँ पर जो कंपाउंड बनता है डेट इज सॉल्ट, वो बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नाइट्रोजन पे आ जाएगी और ब्रोमीन जो है बीइंग नेगेटिव चार्ज, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट बनता है। तो जब भी जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट। क्लियर, सो होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप बता सकते हो। क्लियर, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड।